خادم اور بادشاہ یسوع مسیح کی عبادت کرنے کے لیے جیسا کہ ہمیں کرنا چاہیے، ہمیں یہ سمجھنا اور یقین کرنا چاہیے کہ وہ ایک عاجز خادم اور ایک قادر مطلق خدا ہے۔ میں نوید ملک آج اس موضوع پر روشنی ڈالنے کو ہوں۔ 5 باب کے آغاز میں ان آیات کو سنیں۔ اور جو تخت پر بیٹھا تھا، میں نے اس کے دانے ہاتھ میں ایک کتاب دیکھی۔ یہ خدا ہے اور وہ اسے تھامے ہوئے ہے، جو اندر سے اور باہر سے لکھی ہوئی تھی، اور اسے 7 مہریں لگا کر بند کیا گیا تھا۔ آپ مکاشفہ کی کتاب میں 7 نمبر کو بار بار دیکھتے ہیں۔ 7 مہریں، 7 نرسنگے، 7 پیالے، خدا کی 7 روحوں کے ساتھ کمال کا ایک ناقابل یقین تصور ہے۔ پھر میں نے ایک زور آور فرشتہ کو بلند آواز سے یہ منادی کرتے دیکھا کہ کون اس کتاب کو کھولنے اور اس کی مہریں توڑنے کے لائق ہے۔ اور بے شک جواب بزرگوں میں سے ایک نے دیا، جس نے کہا، مت رو، دیکھ، یہودا کے قبیلہ کا وہ ببر جو داؤد کی اصل ہے، جو پرانے عہد نامہ میں واپس جاتا ہے، اس کتاب اور اس کی 7 مہروں کو کھولنے کے لیے غالب آیا۔ ببر یہ قوت اور طاقت اور بادشاہی کی عکاسی کرتا ہے۔ بادشاہ، وہ بادشاہ یعنی بادشاہوں کا بادشاہ، خداوندوں کا خداوند۔ اور پھر ہم آیات 6 اور 7 میں یہ پڑھتے ہیں، اور میں نے اس تخت اور 4 جانداروں اور ان بزرگوں کے بیچ میں گویا ذبح کیا ہوا ایک برہ کھڑا دیکھا، اور یہاں آپ کے پاس ببر اور برہ کے درمیان ناقابل یقین تضاد ہے۔ ببر اپنی تمام قوت کے ساتھ، بھیڑ کا بچہ اپنی ناقابل یقین نرمی کی وجہ سے خود کا دفاع کرنے سے قاصر ہے۔ اور میں نے اس تخت اور 4 جانداروں اور ان بزرگوں کے بیچ میں گویا ذبح کیا ہوا ایک برہ کھڑا دیکھا۔ اس کے 7 سینگ اور 7 آنکھیں تھیں۔ یہاں آپ دوبارہ 7 کا عدد دیکھتے ہیں۔ یہ خدا کی 7 روحیں ہیں جو تمام روح زمین پر بھیجی گئی ہیں۔ اس نے آ کر تخت پر بیٹھے ہوئے کے دانے ہاتھ سے اس کتاب کو لے لیا، اور آیات 9 اور 10 میں، تو ہی اس کتاب کو لینے اور اس کی مہریں کھولنے کے لائق ہے، کیونکہ تو نے ذبح ہو کر، اس کے متعلق سوچیں، ذبح ہو کر اپنے خون سے ہر قبیلہ اور اہل زبان اور امت اور قوم میں سے خدا کے واسطے لوگوں کو خرید لیا۔ اور یہاں ایک تفصیل ہے، میرے خیال میں ان تمام لوگوں کی جو ہر زمانہ میں نجات پائے۔ اور پھر تو نے ذبح ہو کر اپنے خون سے ہر قبیلہ اور اہل زبان اور امت کو خدا کے واسطے لوگوں کو خرید لیا، اور ان کو ہمارے خدا کے لیے ایک بادشاہی دی اور کاہن بنا دیا، اور وہ زمین پر بادشاہی کرتے ہیں۔ اور پھر آیات 12 سے 14 میں، اور وہ بلند آواز سے کہتے تھے کہ ذبح کیا ہوا برہ ہی قدرت اور دولت اور حکمت اور طاقت اور عزت اور تمجید اور حمد کے لائق ہے۔ اس سے میرے ذہن میں مسیحا کے عظیم گیت آتے ہیں۔ پھر میں نے آسمان اور زمین کے نیچے کی اور سمندر کی سب مخلوقات کو، یعنی سب چیزوں کو جو ان میں ہیں، یہ کہتے سنا کہ جو تخت پر بیٹھا ہے اس کی اور برہ کی حمد اور عزت اور تمجید اور سلطنت
अब्दुल आबाद होती रहे। आप में से कितने लोगों ने मसीहा का गीत गाया है? क्या ये एक बड़ी खूबसूरत बात नहीं है? आप जानते हैं, मैंने मसीहा के तकरीबन सब गीत सुने हैं और कुछ गाए भी हैं, और एक क्वायर ग्रुप के साथ भी। और आप जानते हैं, जब मैं ये पढ़ता हूं तो वो गीत मेरे जहन में आते हैं, और चारों जानदारों ने आमीन कहा और बुजुर्गों ने गिर कर सिजदा किया। अब बुनियादी तौर पर जब वो बर्रा की बात करता है, एक बर्रा के तौर पर, ये वो वजाहत है जिसे यूहन्ना ने मकाशफा की किताब में 28 मर्तबा इस्तेमाल किया है, इस बात की निशानदेही करने के लिए कि यीशु एक हलीम और इनकसार खादम बन गया है। और इसकी पेशनगोई हत्ता के अहद अतीक में भी की गई थी। इस किताब को जिसे आज के यहूदी जिन्होंने मसीहा को कबूल नहीं किया पढ़ने और समझने की कोशिश करने के लिए मुश्किल का सामना करते हैं, दर हकीकत वो अक्सर इसको नजरअंदाज कर देते हैं, यहां तक कि रब्बियों को भी। और क्योंकि यसाया 53 बाब और उसकी 7 आयत में हम यसाया की पेशनगोई में पढ़ते हैं, वो सताया गया तो भी उसने बर्दाश्त की और मुंह न खोला। जिस तरह बर्रा जिसे ज़बह करने को ले जाते हैं, और जिस तरह भेड़ अपने बाल कतरने वालों के सामने बेज़बान है, उसी तरह वो खामोश रहा। अगर आपने बर्रा और बकरियों के साथ कभी काम किया हो तो आप ये समझ सकते हैं। हाल ही में मैं नॉर्वे में एक भेड़ों के फार्म में गया और मैंने बड़ा खूबसूरत मंजर देखा, और ये यीशु की हलीमी की वजाहत करने के लिए एक नाकाबिले यकीन इस्तारा है। और जो कुछ उसने खुदावंदों के खुदा और बादशाहों के बादशाह के तौर पर किया, जब वो आया और उसके पास जो कुछ था उसे एक तरफ रख दिया। इथियोपिया का ख्वाजा सरा याद है, जो इबादत के लिए यरूशलेम आया था? वो अपने रथ पर बैठकर वापस जा रहा था, और फिलिप्पस पाक रूह की रहनुमाई में उसके पास आया, और वो खोजा इस आयत को पढ़ रहा था, और उसने फिलिप्पस से कहा, ये कौन है? ये सब क्या है? और फिलिप्पस उसके साथ रथ पर सवार हो गया और इसी आयत से यीशु के बारे में सच्चाई बयान की। ये यीशु मसीह है जो खुदा का बरा बना, और यकीनन ये कुछ ही वक्त पहले होना था। जैसा कि ये इथियोपियाई ख्वाजा सरा यरूशलेम आया, शायद एक गैर कौम के तौर पर खुदा की इबादत करने के लिए आया था, और फिर अब वो वापसी पर था। और मैं अक्सर सोचता हूं कि उसने इस तोमार के लिए कितनी रकम अदा की होगी। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि उसके पास यसाया का तोमार था? मेरा मतलब है, ये तोमार पोशीदगी में बंद करके रख दिए गए थे। आप जानते हैं, अंदरूनी मकदस में और इबादत गाहों में ऐसा ही था, और इसके पास एक तोमार था और इसके पास होना भी जरूरी था। मुझे नहीं मालूम कि उसने इसके लिए कितनी रकम अदा की होगी, लेकिन यह नाकाबिले यकीन बात है कि उसके पास यसाया का तोमार था। और अगर आप कभी यरूशलेम जाएं तो आप यसाया का तोमार देख सकते हैं, कम से कम उसकी एक नकल जो बहरे मुर्दार के किनारे पाई गई थी। और इस तोमार में यसाया की पूरी तहरीर को देखना एक नाकाबिले यकीन तजर्बा है। वो बर्रा था और अहद अतीक ने इसकी पेशनगोई की थी। अब एक बब्बर के तौर पर यीशु मसीह भी कायनात का खुद मुख्तार रब है। जो कुछ यूहन्ना ने अपनी इंजील में लिखा है, इस रोया में मुकम्मल नजर आ गया है। अगर आप इस इंजील में वापस जाएं तो यूहन्ना की इंजील का आगाज कैसे किया?
इब्तदा में कलाम था। ये यहूदा का बब्बर है और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यही इब्तदा में खुदा के साथ था। ये कौन है? ये यीशु है, यीशु मसीह। सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई और कोई भी चीज उसके बगैर पैदा नहीं हुई। उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी। यूहन्ना ने इसका मुशाहिदा किया था, लेकिन अब इसकी रोया में वो बर्रे का हवाला देख रहा है जिसे ज़बा किया गया था, जो अब आसमान में बाप के दाहिने हाथ पर है। और इसने ये किताब मोहरों और अदालतों के साथ दी है। और ये दिलचस्प बात है कि यूहन्ना की इंजील में, अनाजील के चंद हवालों में मसीह को बर्रा कहा गया है। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी तरफ आते देखकर कहा, देखो, ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। ये हलीमी, इख्तियार करने वाला, मोहब्बत करने वाला, कुर्बानी देने वाला यीशु मसीह है। वो बर्रा कौन है? जो अब आसमान में है। यीशु को खुदा के बर्रा के तौर पर मसलूब किया गया था। वो एक ज़बाशुदा बर्रा था, लेकिन वो जिंदा किया गया था और फिर वो बाप के दाने हाथ जा बैठा, जहां वो आज भी हमारे लिए शिफायत कर रहा है। लेकिन यूहन्ना ने जो देखा अब वही है जो वो शुरू में था, लेकिन अज़ल से था। वो इब्तदा में कौन था? उसकी कोई इब्तदा नहीं थी। देखो, यूहन्ना अब मुकम्मल तौर पर देख रहा है, जैसा कि वो बयान करता है, जैसा कि वो इस नाकाबिले यकीन रोया में जो कुछ देखा उसके बारे में बात करता है। और अब यीशु खुदा के बर्रा के तौर पर नहीं है, वो इस जैसा है जो ज़बा किया गया बर्रा था। और अब वो बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों के खुदा के तौर पर अपने मकाम पर वापस आ गया है। ये बात वाकई दिलचस्पी की हामिल है और गौर करने के लायक। मैं आपको फिलिपियों के खत में ले चलता हूं और सवाल यह है कि इस बाब में यूहन्ना की रोया का इस बात से क्या ताल्लुक है जो पौलुस ने फिलिपियों को लिखा था। और यह एक नाकाबिले यकीन हवाला है और मैं आपको इसमें ले चलूंगा, क्योंकि यह खुदा के बर्रे की कहानी है। जब यीशु इस दुनिया में आया तो क्या हुआ? यह हमें उसकी जिंदगी के जरिए अब्दियत में वापस ले जाता है, जो यूहन्ना ने अपने रोया में देखा था। क्योंकि पौलुस ने कहा कि वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। आप जानते हैं कि वो खुदा की सूरत पर था, जैसा कि यूहन्ना ने लिखा। जब वो खुदा था, उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना समझा। ये यीशु है, मुजस्सम खुदा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादिम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबे हो गया। खुदा रूह है, लेकिन उसने इंसानियत की मुशाबहत इख्तियार की, जो बैतलहम में उस छोटे बच्चे के तौर पर पैदा हुआ और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया। ये बर्रा ज़बा हुआ और यहां तक फरमाबरदार रहा कि मौत, बल्कि सलीबी मौत गवारा की। ज़बा हुआ बर्रा। इस वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सरबुलंद किया। यूहन्ना ये देख रहा है और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है। और फिर लिखा है, ताकि यीशु के नाम पर हर एक घुटना झुके। जब मुकाशफा की किताब की बातें पूरी होती हुई आप देखेंगे तो ये भी देखेंगे कि हर घुटना झुकने वाला है, वो चाहे या ना चाहे, खा आसमानियों का हो खा जमीनियों का।
خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہے، اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ اب ہر کوئی اس بات کو جانے گا کہ وہ کون ہے۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگوں نے توبہ نہیں کی اور اسے یسوع مسیح کے طور پر تسلیم نہیں کیا، خداوند کے طور پر نہیں مانا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اسے خداوند کے طور پر قبول کر رہے تھے۔ بہت سے لوگوں نے یہاں تک مصیبت کے دور میں قبول کیا، لیکن بہت سے لوگوں نے نہیں۔ لیکن یہاں ایک تکمیل ہے۔ یہ وہی ہے جس کے بارے میں پولس لکھ رہا ہے، اور یہ وہی ہے جو اب ہو رہا ہے، جیسا کہ ہم یسوع مسیح کو دیکھتے ہیں۔ نہ صرف وہی جو برا تھا جسے ذبح کیا گیا تھا، وہ در حقیقت وہ برا تھا جسے ذبح کیا گیا تھا، لیکن جو اب بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا ہے۔ یعنی جب وہ اس زمین پر چلتا پھرتا تھا، اور یہ دلچسپ بات ہے اور ہمیں اسے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اب یسوع کے مزاج اور اس کے رویے کی بابت، یسوع کی انکساری، اور یہ دلچسپ بات ہے اور ہمیں اسے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ یسوع کا رویہ، یسوع کا مزاج، یسوع کی انکساری۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ مکاشفہ کی کتاب ہمیں سکھاتی ہے کہ کسی دن ہم اس کے ساتھ حکومت کریں گے، راج کریں گے، ہم اس کے ساتھ آسمان پر حکومت کریں گے، اور یہ ایک نہایت ہی خوش کن حقیقت ہوگی۔